Government has been urging all to maintain social distancing and keep taking precautions in the wake of COVID-19. The ground realities in poll-bound Bihar is completely different here. On election trail, India Today's Ankit Tyagi travelled to Bakhtiarpur. Let's take a look what he found on ground. Bihar gears up for an unprecedented election season. The first state election in the post-COVID world. For a sense on the ground, India Today reached the Bakhtiarpur constituency, which also happens to be the birthplace of Chief Minister Nitish Kumar. I am in Bakhtiarpur constituency, about 50 kilometers from Patna. And as we show you what's happening around, this is a mela, a market for cattle, which you see here. And hardly any social distancing, hardly anyone wearing masks. They are going about their business. I mean, the people, in fact, most of them who you speak to are in total disbelief. Between the hectic negotiations to buy the best cattle, mask and social distancing is merely an inconvenience not to be bothered with in this cattle market in Bakhtiarpur. For most here, Corona doesn't exist. कोरोना को दिया झूठे को मरता नहीं है झूठों का मर गया अरे कोरोना से तो लोग मर रहा है इतना मर रहा है कहाँ मर रहा है दिखाइए को आप लोग मास्क नहीं पहनते हैं मास्क कहाँ पहनेंगे हमको तो है नहीं है सर तो मास्क कहाँ पहनेंगे ये तो फॉल्स है ये सब फॉल्स है सर फॉल्स है नीतीश बाबू थोड़ी कोरोना ले गए हैं वही लाया है वही लाया है तो सारी दुनिया में आ गया नहीं आया है लाया है Conversations from COVID conspiracy, as they believe, moves to the core issues of education and jobs, which are high on the voters' mind. नीतीश बाबू कह रहे हैं हमने विकास किया है नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ क्या काम हुआ कुछ तो युवाओं के लिए क्या चाहते थे तुम जो नहीं हुआ जैसे कि वैकेंसी नहीं आ रही है 2,80,000 मास्टर के बहाली एगो बहाली नहीं दिया 2 लाख पुलिस का बहाली एगो बहाली नहीं दिया क्या किया This market at the heart of Nitish's birthplace, but many seemed disappointed. हवा किसका है हवा यहाँ है तेजस्वी का लमटेम छाप का तेजस्वी के देंगे दूसरा के अरे हाथ उठेंगे कि वोट दिए थे अब आरजेडी के देंगे लेकिन ये जो हाँ हम लोग लालटेन का है हाँ सब लालटेन का है सब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार अच्छा Okay, again, as I told you the caveat, that these are largely the supporters of the RJD. I just wanted to come here to give you a sense of a slice of life in the state of Bihar. From the RJD stronghold Buffalo Market, let's take you to just outside the house where Nitish Kumar was born. This is the house that was made by his father, and till a few years back, his brother used to in fact live here. This is the Bakhtiarpur constituency, assembly constituency in Bihar. It's about 50 kilometers from Patna. And this house where Nitish Kumar was born, he grew up, जहाँ मुख्यमंत्री जी पैदा हुए थे, उनका घर यहाँ पे होने का कुछ फायदा है बख्तियारपुर को, इस इलाके को? बहुत फायदा है सर। क्या फायदा है सर? फायदा है कि बख्तियारपुर का नाम है कम से कम कि यहाँ के सीएम है। नीतीश जी ने 4 लेन बनवाए हैं, जहां पहले हम लोगों को 6 घंटा लगता था पटना जाने में, रोड गड्ढा था, लेकिन आज हम लोग 35 मिनट में टोल पार करके पटना चले जाते हैं, तो फायदा है। Though some support, but not all seem to be convinced by the 3-time chief minister's performance. हम लोग बहुत आशा रखते थे कि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, हमारा क्षेत्र का विकास चतुर्दिक विकास होगा, लेकिन बख्तियारपुर का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा हम लोग का कल्पना था। You know, it's interesting the kind of mix that you will get in the voices here, but the fact remains that this house that you see here of Nitish Kumar, it's just a symbol. It becomes a symbol of hope for a lot of people, those who thought that because the chief minister was born here, possibly this is going to be the symbol which is going to be a symbol, a hope for development. Many are still hopeful, others have given up. With camera person Kiran, Ankit Tyagi in Bakhtiarpur, India Today.
Now, the issue of joblessness is still haunting daily wage laborers. Situation has become quite worse due to the COVID pandemic and the nationwide lockdown. With low wage, survival of the daily wage workers and their families have become extremely worrisome. India Today's Ankit Tyagi brings us this exclusive ground report from Patna. भूखे प्यासे रह रहा, कैसे गुजारा मांग के खा रहा है आपका। सब बंदी हो जा रहा था, हम लोग जिएंगे किससे? रोड है खाली चिकना पर चलना से हमारा पेट भर गए। खाना पीना मिलेगा तब न खाएंगे भाई। अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। मजदूर आदमी काम करने वाला जो लॉकडाउन में मरा है वो कोई भी अभी सरकार को नहीं बनाएगा। In Patna at the Labour Chowk, it's about 11:30 right now. By this time, you will hardly find any labourer, and this is true for most of what is known in possibly every town and city as the Labour Chowk, because they come here at 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, and usually construction labourers, Raj Mistris, labourers, all of them would get picked up, would get employed, and will leave this place. At this point of time at the Labour Chowk here, you will see about 50-60 labourers here waiting for the work. And most of them will tell you about an absolutely back-breaking, extraordinary, lack of employment, economic hardship that they have been facing. आप लोगों को महीने में पहले कितने दिन काम मिलता था, अब कितने दिन काम मिल रहा है? पहले महीने में हम लोग को 20-25 रोज काम मिल जाता था। लॉकडाउन से पहले? हाँ, लॉकडाउन से पहले। अब सर करीब 2-3 रोज मिल जा रहा है, तो बहुत कठिन है। कितना पैसा मिलता था लॉकडाउन से पहले एक दिन के? काम करते थे सर, राज मिस्त्री का मिलता था 600 रुपया और लेबर का 400 रुपया सर। लेबर का 400 रुपया? जी सर। और अब कितना पैसा मिलता है? अभी तो सर 400 में चल जा रहा है, मिस्त्री 500 में मिल रहा है, खखन में जा रहा है, भूखे के चलते जो मिल रहा है जो में चल जा रहा है हम लोग। लॉकडाउन मैंने साफ मैंने फ्री कर दी, तब मैंने पब्लिक मैंने गरीब आदमी ने जी है ना, तो मैंने मर जाई, गरीब आदमी मर जाई, साफ क्लियर पूरा फ्री करी, मरे तो चाहे जिए तो पूरा फ्री। वोट डालते हैं आप लोग? जी सर, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं कि नहीं डालेंगे इस साल? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, कैसे भूखे प्यासे मरेंगे, पैदल चल जाएंगे घर पर, पैसा कौड़ी है नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं डालेंगे, कोई वोट डालेंगे, ऐसे ही कर छोड़ देंगे। गाड़ी से खाना लेके आते थे, वही बांटते थे तो हम लोग खाते थे। खाना बांटते हैं जी? लॉकडाउन में बांटते थे, अब नहीं बांटते। अब बंद हो गया 2-3 महीना से खाना। पहले हम खाना बांटने के लिए गाड़ी से तो लाइन से लगा के गरीब लोग को खाना देते थे, अब तो वो आना जाना बंद हो गया। All of them only have one thing. They used to make their living for about 20 days in a month before the lockdown. Post-lockdown, it has come down to 2 to 3 in 15 days. 2 to 3 days of work in 15 days. All of them only wanting to make an honest living, but extremely angry at the plight where they have been now left at. Many believe the government should have done more. All schemes are only left on the papers. For them, at the end of the day, it's just despair and hopelessness. From the Boring Canal Road, we make our way 3 kilometers away, under the Sipra railway bridge, another spot where daily wagers assemble to find work. मैं खुद इधर 3 महीने से रह के देख रहा हूँ स्कूल के नीचे। मैं बम्बई में 10 साल से रहता था। आप यहाँ पे काम की तलाश में? हाँ, काम करने आया। जब से लॉकडाउन बंद हुआ मैं इधर काम मजबूरी में होटल पे काम करना पड़े। बम्बई में 10 साल काम किया। कितना पैसा मिलता था तुमको? उधर रिलायंस में भी मैं काम किया, उसमें 10 हजार देता था 8 घंटे का। सेठ उधर बोल रहे कि ट्रेन नहीं चालू है, सेठ से बात हो रहा है, लेकिन वो बोलता है ट्रेन चालू होगा तभी तुमको बुला सकता है। तुम यहाँ क्या काम करते हो? वही प्लेट धोता है, लिट्टी चोखा बनाता है और क्या करता है, प्लेट धोता है, लिट्टी चोखा समोसा बनाता है होटल में। कितना पैसा मिलता है? 100 रुपए 150 रुपए मिलता है रोज का। 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करके। हम लोग के मिला है। पहले घर पे पैसा भेजते थे 8-10 हजार रुपए में? कभी से भेजता था 2,500 रुपए लगाता था उस टाइम से। हर महीने? हर महीने। अभी कैसे 150 रुपए में क्या बचा? अभी 150 में बस खा के रह जा रहा हूँ, कहाँ घर पे पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ मैं। किसी के वोट नहीं देंगे, अपने मर्जी से भूखे के लिए लोग नदी नाला घूमने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, मस्जिद आता है, अभी हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं।
कौन गरीब लोग मरता है उसको देखने आया क्या? बड़ी भाभी के रोते हैं, भूखे रोते हैं ये लोग। दे दो भैया खाना दे दो, हाथ पे होटल पे आके मांगते हैं। को 4000 लेके बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं। वोट दिलवाया, सबको वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। अरे नगर सेवक होकर हम कोई कोशिश नहीं करता है। Jagan, a Rajmistri from the Nalanda district, has been waiting for work since 7 a.m. He says, last few months, even paying rent has been an arduous task. मेरा किराया नहीं जुट रहा है साहब, अब क्या करें? मतलब किराए पे रहते हैं लेकिन किराया अभी दे नहीं पा रहे? जी हाँ, नहीं दे पा रहे हैं हम। पैसे नहीं है तो काम नहीं हो रहा तो कहाँ से दे पाएंगे साहब? सिर्फ गरीब को मरना है, गरीब को जीना है, और कोई अच्छी नहीं है। सरकार सिर्फ गरीब को ही मार रही है। हमें कहीं काम नहीं मिला, लौट के आ रहे हैं, जीएम रोड से लौट के आ रहे हैं। भूख लग गया, खाने के लिए नहीं मिला है भोर से। सुबह से नहीं मिला ना, काम नहीं मिल रहा। लॉकडाउन हुआ तब से खाना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। Many are now resorting to whatever odd jobs they can find in desperation to make ends meet. पहले राजमिस्त्री का काम करता हूँ सर। अभी काम नहीं मिल रहा था, हम सर कबाड़ी बोरा में बोतल भरता हूँ सर। डेली का हमको काम करते थे तो हमको डेली का 500 रुपया 550 रुपया मिल जाता था सर बेगाड़ी। और अभी चुनते हूँ तो हमको 100-150 भी नहीं आता है सर। पहली बार कहाँ से चलेंगे सर? इसमें तो खाने के लिए अपने पेट भरने के लिए तो पैसा नहीं होता है, तो कहाँ से परिवार चलेंगे? वोट डालने जाएंगे? जब हम लोग मर जाएंगे तो वोट डालने कौन जाएगा? This is a desperation that cannot be expressed in words. I don't know which way this election is going, but I know one thing for sure. This is an extraordinary election at a time when there is extraordinary economic distress. I don't know how much of an impact it is going to have on the votes, but the anger is palpable and the anger is against the government. With Kiran Sangpal, Ankit Tyagi in Patna, India Today. Ahead of Bihar elections, education remains high on the minds of the youth. Jobs are turning out to be a pawn of the main issues this election. India Today visited college campuses across to see what the youth of Bihar believe in and what's their biggest concern. Let's take a listen. From Takshila to Nalanda, Bihar has been a seat of ancient education hub in this country, in India. But the biggest issue in modern Bihar, in the history of modern Bihar, has been education and unemployment. What is it that the youth of Jahanabad, where the education minister himself is contesting from, what is it that they expect? कई जगह पर बिहार में बोलते हैं कि 3 साल में तो डिग्री हो ही नहीं पाता है। सर अभी तक तो मेरा डिले ही है। मेरा इस 17-20 तक सेशन था मेरा, और अभी तक मेरा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी को लेकर इतना चाव किस बात का? सर यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं के बराबर है। गवर्नमेंट में अच्छा पोस्ट भी होता है और जो सैलरी भी अच्छा होता है, जिसके लिए हम कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। तुमने पहले करा बीएससी, वो साइंस का है। अब तुम लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नौकरी के लिए। लाइब्रेरी साइंस में वैकेंसी आने वाला है, इसीलिए सोचे लाइब्रेरी साइंस। पता चला कि लाइब्रेरी साइंस में नौकरी आने वाला है। बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आया है। कितने साल से वैकेंसी नहीं? लगता है 6-7 साल हो गया। बीएससी कर चुके हैं इसी कॉलेज से। बीएससी करा, इसके बाद 3 साल, इसके बाद 2 ईयर बीएड किया, 5 साल हो गया ऑलरेडी। अभी मैं बीसीसी कॉलेज से कर रहा हूँ। तुम टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो और अब तुम लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, तो टीचर से लाइब्रेरियन बनने का क्यों सोचा? कहीं न कहीं हम सर सरकारी जॉब के ही पीछे भाग रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तभी वैकेंसी आता है, और इलेक्शन जब अगला इलेक्शन स्टार्ट होता उस समय तक भर्ती प्रक्रिया चलती ही रहती। यहाँ इलेक्शन होता 20 दिन में कंडक्ट हो जाता, रिजल्ट आ जाता, लेकिन हम लोग का रिजल्ट नहीं आता। जिस तरह की बातें जब एजुकेशन के बारे में सुनते हो तो तुमको डर लगता है कि आगे तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होगा? सर लगता है तो होगा ऐसा, तो फिर बहुत आगे जाके दिक्कत होगा। बिहार में जब बाहर लोग देखते हैं वो सब फोटो जाता था कि चीटिंग हो रहा है और लोग खड़े हुए हैं, सब कहते हैं कि बिहार के एजुकेशन सवाल के ऊपर वो पूरा सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो आप लोगों को दुख होता है? कुछ वर्ग हो सकते इसमें इन्वॉल्व हो, इसके लिए पूरे बिहार को बदनाम किया जाता है। कंपटीशन का एग्जाम देने भी कहीं गए तो कहता है ये बिहारी है और ये गंदगी फैलाएगा चेक करेगा। मतलब हमेशा निगेटिव, ऐसा क्यों है सर? तुम्हारा कौन से सेशन में? 2018 में एडमिशन करवाए थे, एग्जाम नहीं हुआ पार्ट 1 का। 2018 में
2 साल से तुम अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम का वेट कर रहे हो जी। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। अगर तुम्हारा 2 साल में अभी तक पहले साल का एग्जाम नहीं हुआ है तो दिक्कत होती है परिवार को खर्चा उठाने में? बहुत दिक्कत होती है, बाहर जा नहीं सकते, पैसा नहीं है उतना। कि जेब में पैसा है वो बिहार में नहीं पढ़ना चाहता, जिसके पास मजबूरी है वही पढ़ रहा है। 6 साल में कौन डिग्री लेगा ग्रेजुएशन का? आप लोग वोट जब देने जाओगे क्या सोच के देने जाओगे? जाति वाती ऐसा इस बार कुछ नहीं, इस बार सिर्फ यही है बेरोजगारी है। जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एजुकेशन सिस्टम पहला मुद्दा है, क्योंकि जब फ्रांस में क्योंकि सिस्टम बढ़िया रहेगा तो रोजगार हम खुद ले लेंगे। You know, I just want to pick up on what he said. अगर एजुकेशन अच्छा होगा रोजगार हम खुद ले लेंगे। Give them better education, improve the systems. All of them have waited for 3 years, 4 years, 5 years, 6 years to get their degrees. If any leader, be it Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi, Narendra Modi, any political leader worth their salt, if you could hear their voice and what that boy said, just give us education. That's the basic right of every young person, every child in this country. They will sort out their future on their own. With camera person Kiran, in Jahanabad, Ankit Tyagi for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.